Hello everyone, good afternoon to all. Am I audible? Video is clear or not? Okay, fine. So today in this lecture further we will discuss about DNS. ठीक है, तो कल हमने DNS में क्या कर लिया था, थोड़ा बेसिक DNS के बारे में देखा था. Now we will see that there are two methods of DNS to uh, रिजॉल्व द क्वेरी. ठीक है, क्वेरी जब भी रिजॉल्व करेगा और आईपी एड्रेस अगर उसको रिजॉल्व करना है, इन सच ए केस देयर आर टू मेथड्स. वन इज इटरेटिव मेथड, another one is the recursive method. Let us see the first method, which is iterative method. So assume that this host is contacting to someone, or let me say domain name is www dot uh, let me say IIT dot in, right? It is iit.in. So firstly it will check the IP address to this local DNS server, right? Local DNS server में क्या होगा, डोमेन नेम के कॉरस्पॉन्डिंग उसका IP एड्रेस होगा. So it will search firstly in local DNS server. If it is not in local DNS server, it will go to the root server, right? Once it is getting from root server, it will come back. Okay, it will come back and it will go to this one. In the third step it will go to top level domain, because from root server what it is getting, it will get that which top level domain you want to access. ठीक है, तो अपने को क्या करना था, इन को एक्सेस करना है, तो इन कहां से एक्सेस हो पाएगा, इट विल गो टू टॉप लेवल डीएनएस सर्वर. ठीक है, टॉप लेवल पे जाएगा एंड इट विल कम बैक in the fourth step. Okay, after that in the fifth step it will go to authoritative DNS server. So in the fifth step it will go to authoritative DNS server. Okay, this authoritative DNS server will contain the actual IP address. ठीक है, ये जो authoritative DNS server होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, there will be the actual IP address. So it will come back and it will provide the actual IP address, and this address will be provided to the host, right? So it will follow these steps. Got it? So this is what the iterative methods to access the IP address or resolving the IP address, we can say. Yes. So you got this one or not? Yes. Clear. Fine. And then next is what? Next is the recursive method. So what is the first step? This is what? Host. Again same query. It is www.iit.in assume. So firstly in the first step it will look for the IP address inside this one लोकल DNS सर्वर. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पे क्या करेगा, लोकल DNS सर्वर में देखेगा. अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा, फर्दर ये कहां पे जाएगा, इट विल गो टू रूट इन द सेकेंड स्टेप. रूट से क्या होगा, एक्चुअल में इसको क्या करना पड़ेगा, ये डोमेन चूज करना पड़ेगा, टॉप लेवल डोमेन. तो टॉप लेवल डोमेन कहां से चूज करेगा, इट विल सिलेक्ट फ्रॉम दिस टॉप लेवल DNS सर्वर. ठीक है, सो इन द थर्ड स्टेप इट विल गो टू दिस वन. ओके, फोर्थ स्टेप में कहा जाएगा, फोर्थ स्टेप में जब इसको ये मिल गया तो अब कहां पे जाएगा, आईआईटी वाले पे. सो आईआईटी वाला एक्चुअली कहां पे है, ये अथॉरिटेटिव DNS सर्वर के पास इंफॉर्मेशन रहेगी, राइट? सो इन द फोर्थ स्टेप इट विल गो टू दिस वन एंड नेक्स्ट. हाँ, so in authoritative DNS server what it will contain, it will contain the actual IP address corresponding this domain name, right? Corresponding this domain name, authoritative DNS server will contain the actual IP address.
ठीक है, तो यहां से इसको क्या मिलेगा, आईपी एड्रेस मिलेगा एंड इट विल कम बैक, it will come back to this one. In the sixth step it will come back to this one. In the seventh step it will come back to this one, local DNS server, right, and it will update to the local DNS server or we can say cache. ठीक है, तो इस local DNS server को क्या करेगा, अपडेट कर देगा and finally it will get the IP address in the 8th step, right. This is what a recursive method to resolving the IP address from domain. ठीक है, सो डोमेन नेम से क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं आईपी एड्रेस, और ये स्टेप्स अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करने पड़ेंगे. सो आई थिंक इट इज आल्सो क्लियर. यस, क्लियर और नॉट? ओके फाइन. ओके, एक ही पर्सन क्या कर रहा है, क्लियर और नॉट क्लियर कंफर्म कर रहा है, बाकी का क्या जूम करके चलूं, क्लियर हो गया? ओके, प्रिया की साइड से भी क्लियर है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, डीएनएस यूजेस dash as a transport layer protocol. Tell me, what will be the transport layer protocol here? It is a UDP or TCP? So transport layer protocol क्या use करेगा DNS? That will be UDP or TCP? Okay, Poonam is saying TCP. What about others? Oh, Sandeep is saying UDP. Yeah, out of these two, one is correct. Out of these two, one is correct one. So which one is correct? Oh, Anil Kumar is saying it is ICMP. ये दूसरी दुनिया का प्राणी लग रहा है, ऐसे प्राणी इस दुनिया में नहीं मिलेंगे, दूसरी दुनिया में ही है, राइट. तो दूसरी दुनिया का प्राणी लग रहा है ये. So finally what is the protocol name? It is a UDP, right. DNS uses UDP as a transport layer protocol. TCP क्यों यूज करेगा भाई, यहाँ कोई रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट थोड़ी है. रिलायबिलिटी अगर चाहिए फिर तो क्या होगा, TCP का यूज होगा ना, लेकिन यहाँ तो कोई रिलायबिलिटी की बात है ही नहीं, जस्ट रिजॉल्व करेगा आईपी एड्रेस, तो उसमें रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है. इन केस फर्स्ट टाइम इसको मतलब क्या हो गया, पैकेट डिस्कार्ड भी हो गया तो क्या होगा, सेकेंड टाइम क्वेरी कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, DNS uses the UDP as a transport layer protocol for the single request and a reply. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, जस्ट सिंगल रिक्वेस्ट और रिप्लाई चाहिए, तो क्या करेगा, UDP यूज करेगा. व्हाट अबाउट दिस वन? हाँ, क्लोजेस्ट रूट सर्वर टू द इंडिया इज टोक्यो जापान. सो क्लोजेस्ट रूट सर्वर क्या रहेगा इंडिया का, इट इज टोक्यो जापान. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अबाउट DNS. ठीक है, तो DNS क्या हो गया, कवर हो चुका है अपना. और अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. आई थिंक सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा. Okay, Sandeep, it is a hierarchy of the servers. There will be the root server, then top level DNS server, and there will be the authoritative DNS server. ठीक है, so this is what hierarchy. So out of that hierarchy, root level server is also the DNS server. ठीक है, तो ये root level server रहेगा.
बात करें तो टोटल 13 रूट सर्वर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. देयर आर टोटल 13 रूट सर्वर. There are 13 root server all over the world and closest to India is Tokyo, Japan. Okay, so let me rub this one and I will continue with the next topic, which is hardware devices. यस, टाइम 3 o'clock का है. कैंडिडेट्स कनेक्ट होने में काफ़ी लेट हो जाते हैं. 3:10 तक भी सारे कैंडिडेट्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं. और मैंने तो बोल रखा है कि 3 बजने से पहले ही कनेक्ट हो जाया करो 10 मिनट. Yeah, that will be the next topic. Encryption, that cryptography, that will be the next topic. तो इसके बाद करेंगे वो वाला टॉपिक. So we'll discuss about hardware devices. So if we talk about Ethernet, Ethernet, and there is a single LAN. If it is Ethernet and single LAN, so all the station in the LAN that can be connected to the backbone cable using the bus topology. ठीक है. अगर सिंगल कोई LAN है तो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे किससे, बैकबोन केबल के थ्रू सारे के सारे स्टेशंस कनेक्ट हो जाएंगे. ओके, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटर और हब इन दिस वन? नो, because for this single LAN there is no requirement of that repeater or hub. अगर एक ये वाली LAN है और एक LAN और है, अब इन दोनों को कनेक्ट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, इन बिटवीन किसी डिवाइस की रिक्वायरमेंट आएगी, है ना. अगर ये दो डिफरेंट लैन होगी, मान लीजिए ये एक लैन सेगमेंट है और दूसरा ये लैन सेगमेंट है, और इन दोनों को क्या कराना है, कनेक्ट कराना है, तो उस केस में क्या रहेगा, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फर्दर ए डिवाइस. कोई भी डिवाइस चाहिएगा, और डिवाइस मैं नहीं कह रहा कि कौन सा चाहिएगा, अभी के लिए जस्ट बेसिक देख रहे हैं. ओके, सो अभी के लिए एज्यूम करते हैं कि इथरनेट में एक ही ये लैन सेगमेंट है और यहाँ पे फर्दर कोई लैन सेगमेंट नहीं है, राइट. सो यहाँ पे एन स्टेशन अगर है तो कोलिजन डोमेन क्या रहेगा, अगर इस लैन में एन स्टेशन कनेक्टेड है तो कोलिजन डोमेन क्या रहेगा, there are n station, then what should be the collision domain in case of Ethernet without any device like hub or router, that hub or repeater we can say. Okay, Anil is saying, and what about others, बताना जरा.
Oh, video is not clear. Okay, is this problem with all the persons? The same problem, video not clear, it is with same, sorry, all. Okay, अब ठीक है, then fine. बताना इसका क्या रहेगा? n स्टेशन अगर है मेरे पास तो collision domain क्या रहेगा? There are n stations, then what should be the collision domain here? Oh, Sandeep is saying n minus 1. It is not n minus 1 because out of n station, there can be the collision in the any station. ठीक है, किसी भी स्टेशन पे क्या हो सकता है? collision हो सकता है, right? तो collision domain इसका क्या रहेगा? That will be n. इनमें से किसी में भी क्या आ सकता है? collision आ सकता है ना? तो n स्टेशन पे क्या रहेगा? collision domain that is also n. ठीक है, कोई भी स्टेशन क्या हो सकता है? कोलाइड हो सकता है. Got it? Okay, next we'll discuss about some of the links. One is 10 base T. 10 base T. Yes, what is the meaning of this 10 base T? Can you tell me? 10 base T. Oh, Sandeep is saying twisted pair. So 10 base T means it is a 10 Mbps. 10 Mbps. Base means it is a base band. It is a base band cable. Or next T means it is a telling about the distance. It is 100 meter. 100 meter, right? This is the meaning of 10 base T. 10 means it is 10 Mbps base band and 100 meter. What is the meaning of base band? What is the meaning of base band here? Through that cable only the single signal will travel. ठीक है, तो सिग्नल क्या रहेगा? सिंगल. सिंगल क्या रहेगा? सिग्नल रहेगा. वी कैन से नो मल्टीप्लेक्सिंग. ठीक है, इट इज नो मल्टीप्लेक्सिंग. What about next? It is 10 base 2. 10 base 2. 10 base 2 means it is 10 Mbps. Base means it is a base band and 2 means it is 200 meter, right? 2 means 200 meter. What about next? It is 10 base 5. Next is 10 base 5. 10 base 5 means it is 10 Mbps. Base means it is a base band and 5 means it is 500 meter.
right? And what is the 100 base T? 100 base T means it is a 100 Mbps baseband, and the T means it is 100 meter, right? So these are some of the that we can say cable or link, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दे रखी है. Got it? Okay. Now we'll discuss about the devices. Oh, electricity has gone. Okay, so yes, Sandeep. Okay, then okay. So next thing we were discussing about what Ethernet, and this is what the case of Ethernet, and this is assume a LAN. This is what a LAN, but there can be the signal loss due to attenuation. There can be the signal loss after some distance due to the attenuation. ठीक है, attenuation की वजह से क्या हो सकता है? There can be the signal loss, right? अगर सिग्नल लॉस हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Will have to use the device in between. तो कोई डिवाइस इसमें यूज करना पड़ेगा. ऐसा भी नहीं कर सकते कि सिंगल बेस बैंड केबल क्या कर दी, एक मान लीजिए 100 मीटर यूज कर रखी है, उसकी जगह 200 मीटर कर दे. अब 200 मीटर अगर करेंगे तो क्या होगा? अटेन्यूएशन की वजह से वहां पे सिग्नल क्या होगा? लूज करना स्टार्ट कर जाएगा. इसका मतलब वहां पे इन बिटवीन कोई डिवाइस यूज करना पड़ेगा. कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? आई विल टेल यू लेटर. ओके, ठीक है. उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज रहेंगी यहाँ पे. हाँ, सो यहाँ पे ये ऑपरेट कहाँ पे हो रहे हैं? लिंक की बात करें तो वहां पे कॉन्सेप्ट किसका आएगा? देयर विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल लेयर. लिंक की अगर बात करें तो देयर विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल लेयर. ओके, देन here they are facing the problem of attenuation. They are facing the problem of attenuation. And another thing, that a collision domain. So collision is possible and collision domain is n. If there are n station, then collision domain is n. ठीक है? So I think you got these 3 points. ठीक है, फर्दर प्रोसीड करते हैं. Okay, my video is clear or not? Okay. Then next question, how to extend the length of this cable. इस केबल की लेंथ को कैसे एक्सटेंड करेंगे? मान लीजिए दिस इज व्हाट है 100 मीटर और इसको मुझे क्या करना है? 200 मीटर करना है. अगर 200 मीटर करना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा. अगर इसको बढ़ाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? देयर कैन बी द अटेन्युएशन, एंड ड्यू टू अटेन्युएशन व्हाट विल हैपन? इट सिग्नल विल बिकम वीक. ठीक है, तो सिग्नल वीक बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? कोई डिवाइस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. ठीक, तो दैट डिवाइस इज नथिंग बट ए रिपीटर. सो विल यूज रिपीटर हियर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा अपने को? विल हैव टू यूज रिपीटर.
Then let's understand what is the role of repeater. Yes, can you tell me what is the use of repeater? What is the use of a repeater? Anyone? Can you? ओके, सिग्नल अगर वीक है तो अगेन, ओके, सिग्नल वीक है उसको बूस्टअप करने का काम तो कौन कर सकता है? दैट एम्पलीफायर कैन डू। एम्पलीफायर भी तो कर सकता है ना? या जी, ठीक है। सो repeater is used to connect two length segments. Let me say this is what a length segment L1 and this is what a length segment L2. To connect these two length segments we require the repeater. ठीक है? So repeater is a hardware device which is operated over the physical layer and it is having two ports. तो यहाँ पे कितने ports रहेंगे? There will be two ports and it is used to connect two LAN segments. LAN के दो टुकड़े हैं, उनको क्या कराएगा? कनेक्ट कराने का काम करेगा। ठीक है? So LAN segments को कनेक्ट कराने का काम किसका रहेगा? That will be the role of repeater. Then how repeater is different from amplifier? चलो रिपीटर के कुछ मैं पॉइंट्स बता देता हूं, उसके बाद डिस्कस करेंगे हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एम्पलीफायर। सो कुछ पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट ये रहेगा, इट इज ऑपरेटेड ओवर द फिजिकल लेयर, राइट? रिपीटर इट इज ऑपरेटेड ओवर द फिजिकल लेयर। नेक्स्ट पॉइंट, द कोलिजन इज पॉसिबल और नॉट? यस, कोलिजन इज पॉसिबल। कुछ ऐसा सीन हो गया ना, एक लेंथ सेगमेंट ये हो गया और एक लेंथ सेगमेंट ये था, तो अभी भी क्या हो सकता है? देयर विल बी द कोलिजन। इनमें कोलिजन हो सकता है, इनमें कोलिजन हो सकता है, इवन यहां पे भी कोलिजन हो सकता है, राइट? सो कोलिजन इज पॉसिबल। Collision is still possible. Next point, that what will be the collision domain if there are a total n station here and here? These are total n station. What should be the collision domain? Will it reduce the collision domain? क्या collision domain सिर्फ ये वाला रहेगा या collision domain ये वाला रहेगा और collision domain क्या रहेगा? That entire one. बताना जरा, what should be the collision domain? Collision domain. If there are n station, what should be the collision domain? Oh, Sandeep is saying n plus 1. ओके, कोलिजन किसका होगा? क्या रिपीटर का कभी कोलिजन होगा? कोलिजन रिपीटर का तो नहीं होगा ना, कोलिजन तो स्टेशंस का होगा। तो एन स्टेशन अगर होंगे तो एन स्टेशंस का ही क्या रहेगा? कोलिजन रहेगा। दिस मीन्स दिस इज व्हाट द कोलिजन डोमेन, एंटायर दिस वन। ठीक है? कोलिजन कहां पे हो सकता है? यहां पे भी हो सकता है कोलिजन, यहां पे भी हो सकता है, और कोलिजन यहां रिपीटर पे भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? एंटायर वन इज द कोलिजन डोमेन। ठीक है? तो एन स्टेशन अगर होंगे तो सारे के सारे क्या हो सकते हैं? कोलाइड हो सकते हैं। सो कोलिजन डोमेन इज एन। गॉट इट? ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ, ओके,
So it will take 1 minute, right? After that we'll start. Yes. So till this part, I think it is fine. Okay. So let us see next point. What should be the next point? Next point is we can increase the range of the LAN. We can increase LAN range with the help of रिपीटर. ठीक है ना? इसके डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं. So we can say increase the range of the LAN. Okay, is there any improvement in the collision domain? Improvement in collision domain by using a repeater. By using repeater, is there any improvement? No, क्योंकि जब रिपीटर का यूज नहीं कर रखा था तब भी क्या था कोलिजन डोमेन? इट वाज n. और अभी भी क्या क्या रहेगा कोलिजन डोमेन? n. तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे इसका यूज करके कोलिजन डोमेन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट रिपीटर. सो रिपीटर और एम्पलीफायर में क्या डिफरेंस रहेगा? बताना जरा. What is the difference between the amplifier and a repeater? Okay. Okay, let's understand the difference of the repeater and difference between repeater and amplifier. Let me say it is a amplifier and this is what a repeater, right? So in case of amplifier, it will assume that this is what a amplitude of the signal, right? And it is being weak till this time. ठीक है. तो यहां तक की डिस्टेंस में क्या हो गया? वीक हो चुका है ये सिग्नल. ठीक. तो एम्पलीफाई जब हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा? इट विल कम आउट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो जाएगा, राइट? बट इन केस ऑफ रिपीटर व्हाट विल हैपन? These are the signals coming through repeaters. Now these signals are weak at this point. So here repeater is being used. तो ये repeater क्या करेगा? It will regenerate the signals. ठीक है. और regenerate करेगा. और जब रीजनरेट करेगा तो ये क्या नहीं करेगा? इट विल नॉट चेंज द एम्पलीट्यूड. ठीक है. एम्पलीट्यूड इसका क्या रहेगा? सेम रहेगा. जितना एम्पलीट्यूड इसका था वही एम्पलीट्यूड इसका रहेगा. बट यहाँ पे क्या होता है? एम्पलीट्यूड उसका चेंज हो जाता है, राइट? सो दिस इज व्हाट मेजर डिफरेंस बिटवीन द एम्पलीफायर एंड द रिपीटर. गॉट इट? हाँ, मुकेश इज सेइंग एम्पलीफायर डिस्टरबेंस रिमूव करता है. ये काम तो संदीप भी कर देता है. संदीप भी डिस्टरबेंस कई बार खत्म कर देता है, राइट? सो दिस इज व्हाट द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एम्पलीफायर एंड द रिपीटर. इतना ज्यादा मुझे वो
डिजिटल और डिजिटल सॉरी ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का मुझे इतना ज्यादा नहीं पता है, जितना मुझे पता था उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, दिस इज व्हाट मेजर डिफरेंस. ओके फाइन. So next we'll discuss about a hub. Hub is the next device. So hub is next device, and hub is what? It is a multi-port repeater. ठीक है, hub क्या है? It is a multi-port repeater. Right? So functionality of hub is similar to the repeater, but this is what multi-port. That a repeater having only two ports, repeater that having only two ports, but a hub can have a multiple number of ports. Right? It will have multiple number of ports. So if it is having the multiple number of ports, it means we can connect the multiple number of LAN segments. ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, मल्टीपल LAN segments को क्या किया जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है. हाँ हाँ हाँ, एम्पलीफायर में डीजे बजा सकते हैं, क्या रिपीटर बजा सकता है? आई डोंट नो अबाउट दिस वन. अनिल कह रहा है कि बजा सकता है, हो सकता है. अनिल अनिल पहले डीजे पे ही काम करता था, इसको इसको पता है इस बात का कि बजा सकते हैं या नहीं बजा सकते. कई बार हम अनिल को डीजे बोलते हैं, ये बजता रहता है. हाँ देखो, इसने एक्सेप्ट भी किया है, अनिल ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैं डीजे हूँ. ओके नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हब. और हब क्या है, इट इज द मल्टीपोर्ट रिपीटर. हब मल्टीपोर्ट रिपीटर रहेगा. ठीक है. ओके नेक्स्ट थिंग, assume that these are the station connected to the hub. D assume. Hmm? These are the stations connected. So one thing, in case of hub, that the traffic will be high. ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा बाकी नोट्स जो होगा इसका. सो फर्स्ट पॉइंट, ट्रैफिक विल बी हाई. मैं लिख नहीं रहा, टाइम वेस्ट होगा. ट्रैफिक क्या रहेगा, हाई रहेगा. यहाँ पे ट्रैफिक इज हाई इन केस ऑफ हब. वाई ट्रैफिक इज हाई? मान लीजिए कि ये पर्सन क्या करना चाहता है, ए डी को कुछ सेंड करना चाहता है. डी को कुछ सेंड करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, इट विल नॉट यूज द मैक एड्रेस एज ए सोर्स एंड डेस्टिनेशन. ठीक है, तो मैक एड्रेस यहाँ पे ये यूज नहीं करता है, तो ये क्या करेगा, इट विल डू द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ दिस पैकेट. तो ये कहाँ कहाँ पे जाएगा, इट विल गो टू दिस वन, इट विल गो टू दिस वन, इट विल गो टू दिस वन आल्सो. तो ये सबके पास जाएगा, मतलब ब्रॉडकास्टिंग होगी, मीन्स देयर विल बी द हाई ट्रैफिक. ठीक, तो हमें भेजना किसको था, डी को. डायरेक्टली ये डी को नहीं भेज सकता, इट विल सेंड टू ऑल पर्सन ए सी एंड डी. राइट, तो ब्रॉडकास्टिंग करेगा ये. राइट, सो सेकंड पॉइंट, it is operated over the physical layer. That's why it doesn't support the MAC address, because MAC address it is case of data link layer. MAC address की बात करेंगे तो कहाँ क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा, it will be the concept of data link layer, but it is operated over the physical layer. ठीक है, तो ये कहाँ पे फिजिकल लेयर पे ऑपरेट होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, collision is possible or not? Yes, definitely collision is possible. Collision is possible. Next point,
What should be the collision domain if there are n station connected? Assume that n stations are connected. What should be the collision domain in case of hub? यस संदीप, अनिल सारे काम करता है, कैमरामैन प्लस डीजे प्लस कुक एंड ऑल दैट। सो सारे के सारे काम कर देता है ये, मल्टीटास्किंग पर्सन है ये। हाँ, तो क्वेश्चंस मैंने क्या कहा कि देर आर एन स्टेशन एज्यूम एंड इन सच ए केस व्हाट विल बी द कॉलिजन डोमेन हियर, दिस इज द क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कॉलिजन डोमेन क्या रहेगा, बताना जरा। और संदीप इज सेइंग मेरा तो गलत ही होगा हर बार की तरह। नहीं संदीप, ट्राई करो, सही भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। व्हाट अबाउट अदर पर्सन्स? हाँ, कनेक्ट होके और फोन को रख के सोना नहीं है, रिप्लाई भी कर दिया करो। Okay, so collision domain is same here. If there are n station and there can be the same collision domain n, ठीक है। n स्टेशन अगर है तो collision domain यहाँ पे क्या होगा, that will be n। कोई भी स्टेशन क्या हो सकता है, कोलाइड हो सकता है, ठीक। तो collision domain यहाँ पे n रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, collision कब आएगा? If two stations are sending data at the same time, अगर दो स्टेशन सेंड कर रहे हैं सेम टाइम पे तो क्या होगा, देयर विल बी कॉलिजन। व्हाई? इफ इट इज ए इज सेंडिंग टू सी एंड दिस बी इज सेंडिंग टू डी, तो जब ये डी को सेंड कर रहा है और ये किसको सेंड करेगा, सी को सेंड करेगा एट द सेम टाइम, तो फिर क्या करेगा, ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा हर जगह पे, सी के पास जाएगा, डी के पास, सबके पास जाएगा, और ये दूसरे वाला पैकेट भी सबके पास जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, डेफिनेटली कोलाइड होगा। तो जब भी दो पर्सन क्या करेंगे, सेंड करेंगे, तो कोलिजन आएगा। राइट, सो इन केस ऑफ हब ऑल्सो कोलिजन डोमेन रिमेन सेम, ठीक है। तो कोलिजन डोमेन यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। So these are the major points regarding hub. And what is the advantage of a hub? As compared to switch we can say, अभी स्विच की बात हमने की नहीं है, बट कंपेयर अगर करें तो स्विच के कंपैरिजन में कॉस्ट क्या रहेगी, इसकी लेसर कॉस्ट रहेगी, और हाँ फंक्शनलिटीज किसकी हाई होंगी, वो दैट विल बी स्विच, ठीक है। वो डिस्कस करेंगे बाद में। तो कॉस्ट क्या रहेगी यहाँ पे, अगर स्विच के कंपैरिजन करें तो लेस कॉस्ट रहेगी यहाँ पे, दिस इज व्हाट एडवांटेज। गॉट इट? ओके, तो हमने क्या किया, थोड़ा इथरनेट के बारे में देखा है, रिपीटर के बारे में देखा है, और लास्ट हमने हब के बारे में देखा, राइट। और अभी टाइम ओवर हो चुका है, हाँ अब 4 बज चुके हैं, तो आगे नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्रीज, ठीक है। सो ब्रीज अपने को करना है, तो नेक्स्ट क्लास में अपना ओवर हो जाएगा ये, जिसमें हम ब्रीज करेंगे, राउटर करेंगे और गेटवे के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिवाइसेस अपने ओवर हो जाएंगे। सो इट इज फॉर टुडे।